अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आवाज़ क्लियर अगर मेरी आ रही है तो बता दें and let the other participants join and then we will start. I still haven't received anyone's message. Can you guys hear me clearly without any noise? Alright class, 8 participants, still a lot left. Okay, tell me about your enrollment issue on LMS. I haven't seen anyone on LMS enrolled in my course. What is the issue there? Why am I not seeing anyone on LMS? Because last I think कल मैंने email की थी आपको या उससे पहले that you should enroll. आपको मैंने enrollment की वगैरह भी भेजी थी, but it's still on my LMS 5D e-commerce. I am not seeing any student. There is only one participant enrolled in the course and that is me. No one else. Why is that so? What are the issues here? लिखा हुआ है सेल्फ एनरोलमेंट इज़ क्लोज्ड, विच शुड नॉट बी क्लोज बिकॉज सेल्फ एनरोलमेंट आपको ईमेल करते ही मैंने ओपन की थी, यानी कि मैंने ओपन की थी और उसके बाद जो है वो मैंने फिर आई विल चेक अगेन लेट्स सी अगर कोई इशू है तो। राइट, स्क्रीन आप आई थिंक आपको नज़र आ रही होगी, मैं LMS के पेज पर हूँ। इफ़ दैट इज़ द केस, आपको नज़र आ रही है स्क्रीन तो मुझे बता दें। एंड ओके, ईमेल ही रिसीव नहीं हुई थी अनवर को, ठीक है, आपको कहीं ना कहीं से तो मालूम हो ही गया होगा। ईमेल मैंने सबको की थी वैसे, लेकिन आई थिंक आई एम स्टिल शॉर्ट ऑफ सम ईमेल एड्रेसेस ऑफ स्टूडेंट्स। सो ओके, अच्छा, इफ़ यू नो एनी बेटर अबाउट द सेल्फ एनरोलमेंट इशू, सो प्लीज़ लेट मी नो। आई एम ऑन एनरोलमेंट मेथड्स, क्योंकि इस तरह ही मैंने बाकी सारे कोर्सेज़ में की है एंड ऑल ऑफ द कोर्सेज़ हैव बीन ओके विद ऑल द एनरोलमेंट, बट यहाँ पर सेल्फ एनरोलमेंट क्यों नहीं हो रही है? दिस इज़ द थिंग दैट आई ओपनड यस्टरडे. लेट्स सी ऑन द सेटिंग्स एंड यू विल सी दैट देयर इज़ allow existing, allow new enrollment is yes, so that means you can enroll yourself. Use group enrollment keys, default assigned role will be student, enrollment duration will be nothing, it should not be end on itself. Notify हो ना हो उससे कोई इशू नहीं होता. Send course welcome message, that's okay in my opinion, but चले मैं कोई और ओपन कर देता हूँ, मैं कोई और मेथड लगा देता हूँ, हो सकता है कि मेथड के इश्यूज़ की वजह से कुछ हो रहा हो. Not the participants but enrollment methods, and after that self enrollment. Again I'm opening it. Okay, the name would be okay, please note down all of the things. तकरीबन वही चीज़ें हैं जो कि मैंने आपको ऑलरेडी भेजी हुई हैं. Say EC self enroll and allow existing enrollments भी आप कर सकते हैं. The enrollment key would be EC fall 2020 SMIU. You can see it here, EC fall 2020 SMIU, all in lower cases. बाकी इस सेटिंग को छेड़ने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है unless I want to do something extra. यूज़ ग्रुप एनरोलमेंट कीज़ नहीं होने चाहिए. देयर शुड नॉट बी अ मैसेज और एनी काइंड ऑफ. अच्छा, एनरोलमेंट ओपन और स्टार्ट डेट इज़ नॉट इनेबल, विच मीन्स वेन एवर आई ओपन इट it's going to be open indefinitely. So there it is, I'm adding the method. What I want you guys to do is go onto your LMS and check if you can now self enroll in this course or not. If you can, then please do. अभी ही कर लें और बाकी अपने कोलीग्स को भी बता दें कि एनरोलमेंट ओपन हो गई है तो वो कर लें एज सुन एज़ पॉसिबल, बिकॉज आज के बाद फिर हमारी जो असाइनमेंट्स और क्विज़ेस होंगे, वी आर रियली होपिंग कि वो LMS के थ्रू ही हों. Although we cannot rely on LMS that much, but still it's an official platform and we should use that, and hopefully हम वो use करेंगे. So go on your LMS and take a couple of minutes and please notify me via chat what are the issues there, or if you can enroll yourself then tell me if you can enroll yourself or not.
Okay, the enrollment key was wrong in my settings. The enrollment key is EC Fall 2020 SMIU. This is the enrollment key, EC Fall 2020 SMIU. इनकरेक्टली मैं एस लिखना भूल गया था अपने इनरोलमेंट के की के अंदर. सो EC Fall 2020 SMIU is the key for all the students that will be listening to the recording. ऑनलाइन पे भी मैंने बता दिया है. Okay, so let's refresh the page and see if all of the students are enrolled that are online. There are 11 participants and wow, 11 users have been enrolled, so good. इसके अलावा जितने स्टूडेंट्स क्लास में नहीं हैं अभी, उनको भी काइंडली बता दें कि इस कोर्स में एज सुन एज पॉसिबल एनरोलमेंट कर लें. देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि हम जो नेक्स्ट क्विज़ लेंगे वो क्विज़ जो है वो LMS के ऊपर ही होगा. तो उसकी कुछ इंस्ट्रक्शंस वगैरह भी मैं आपको बता दूंगा कि कैसे हम लेंगे. ऑल्दो यू नो यू गाइस आर इन 5th सेमेस्टर, सो यू ऑलरेडी नो अबाउट दैट कि LMS के ऊपर क्विज़ किस तरह से कंडक्ट होंगे. बट स्टिल मैं आपको इंस्ट्रक्शंस उस वक्त भी दूंगा जब हम क्विज़ कर रहे होंगे. बट द मेन थिंग दैट इज़ गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम इज़ द इशू ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड इंटरनेट. सो बी श्योर ऑफ दैट बिफोर यू स्टार्ट द अटैम्प्ट, बिकॉज देयर विल बी ओनली वन अटैम्प्ट अलाउड. सो इससे रिलेटेड जो भी बातें हैं वो भी हम करेंगे बाद में व्हेन देयर विल बी द स्टार्ट ऑफ द क्विज़. ओके, सो या सो देयर इज़ एन असाइनमेंट नंबर 2 आप सबको मिल चुकी होगी, आई होप. आई एम नॉट श्योर मैंने उस पर बात की थी या नहीं, बट असाइनमेंट नंबर 2 इज़ हेयर. सो असाइनमेंट नंबर 2 आप लोगों ने करनी है और उसकी सबमिशन सिर्फ और सिर्फ ईमेल एड्रेस के ऊपर है, विच मीन्स कि आपने सिर्फ और सिर्फ ईमेल के ऊपर सबमिट करवाना है. एंड दैट गोज़ विदाउट सेइंग कि सबमिशन इंस्ट्रक्शंस को आपने फॉलो करना है. ईच एंड एवरीथिंग शुड बी ऑन पॉइंट. Your file name, the subject of your email, the thing that you will write in the email body, or obviously email address. It is very necessary that your email address should be the one that I've sent you in here, submission instructions. I've seen some of the students send the assignments on my official email address, that is at smiu.edu.pk. You are not supposed to send your emails or especially your assignments on that email. That email is only for correspondence. This email is only for assignments, because I want the assignments to be managed in a way so that I can easily access the assignment of some student. Because if you send me on at smiu.edu.pk email, that will be an issue, because I've been using that email for correspondence with all of the students and all of the teachers as well. It is an official email, so it gets very hard to find a specific assignment or submission of a student on there. So it's necessary that you submit on this assignment, this email only, and write the subject as it is, obviously by changing the roll number. All of the things should be same, because I will be searching the assignment. I'm taking all of my assignments, all of the courses that I'm teaching, the assignments are on this email. So if you want your assignment to be found by me, so please write the subject correctly. And the questions are pretty much self-explanatory, and most of the questions are kind of like opinionated. You have to describe and discuss some of the things that you have learned in this class, and that would be your assignment. Okay, before going toward the end of the lecture, like जो हम lecture पढ़ रहे थे, let me share the other screen. Where should I? Okay, stop share, and now I will share this screen. Similarly for the recording, I will have to go to this page. Right, hopefully you guys are now seeing the lecture that we were discussing in last class, right? Due date 1 week कर दें. Why? It's just a theoretical thing. You don't need to be worked up about it.
just give it your 1 hour or 2 hours, just write some pretty good points about that, what have you learned about the things that I've asked in the assignment, and that should be enough. It's not a research based assignment or any kind of mathematics or like that, algorithms. So it's just a pretty self-explanatory assignment. Write your own understanding, and it should not take you more than 1 to 2 hours, I hope. अनवर खान इज सेइंग कि इनका पुराना क्विज़ नहीं हुआ था, एक्सीडेंट हो गया था. यस, आई थिंक स्टूडेंट ने मुझे बताया था. सो ओके, क्विज़ेज़ जो हमारे हैं उनके ऊपर हम तादाद जो है वो ज़्यादा रखेंगे थोड़ी सी. वी विल ट्राई कि हमारे क्विज़ेज़, आई होप, फर्स्ट ऑफ ऑल आई होप कि हमारी अगर क्लासेस ऑनलाइन पर आ गई हैं तो ऑनलाइन ही रहें एटलीस्ट दिस सेमेस्टर, ताकि हमें शिफ्ट ना करना पड़े आगे पीछे अपने सारी प्लानिंग्स को. सो आई एम प्लानिंग कि हमारे जो नेक्स्ट क्विज़ होंगे वो हमने अगर 3 क्विज़ जो है वो समझने हैं, 3 क्विज़ अगर हमने कंसिडर करने हैं फॉर 30 मार्क्स ऑब्वियसली. सो आई विल वांट कि हमारे 3 के बजाय 4 क्विज़ेस हों या 5 हों, ताकि एक क्विज़ का आपके पास लीव हो जाए. जिस तरह से अभी अनवर खान कह रहे हैं कि इनका एक इशू था, इसकी वजह से ये नहीं दे सके ऑब्वियसली, तो उसमें इशू है. सो उसको भी हम कंपनसेट करने की कोशिश करेंगे. तो इसी तरह बाकियों के भी इश्यूज़ हो सकते हैं, स्पेशली जब हम ऑनलाइन में ले रहे होंगे. तो किसी की लाइट का इशू है, किसी के इलेक्ट्रिसिटी इंटरनेट का इशू है, किसी की डिवाइस का इशू है. तो ये अगर ऑन द स्पॉट आते हैं तो फिर हम उसको भी अकोमोडेट करने की कोशिश करेंगे बाय द यूज़ ऑफ एन एक्स्ट्रा क्विज़ दैट वी विल बी कंडक्टिंग एट द एंड ऑफ द सेमेस्टर होपफुली. So the amount that we will be considering the quiz we will try to do 1 or 2 more quizzes so that we can consider the best of them, right? So let's come back to what we were discussing. Acha, yeah, before doing that, before going towards ending this lecture, I would want you guys to do some activity in this class. असाइनमेंट्स तो हमारी हैं ही, वो तो हो ही रही हैं, बट देर आर अ लॉट ऑफ टर्मिनोलॉजीज़ इन ई कॉमर्स एंड इन द कोर्स ऑफ से बिजनेसेस एंड मार्केटिंग that all of you should know about. These are not the terminologies that we will be discussing and reading them as one lecture, right? So there are many terminologies for that. I've put out some of the terminologies for you. I want you guys to okay, this is an activity that would take pretty much a good amount of time of your class, but I want you guys to do it. Physical में होते तो बहुत ही अच्छा रहता, but because we are online, so we will have to deal with that. So I want you to note down some of the terminologies that I am telling you, and I want you guys to understand those terminologies on your own. Take a few minutes, like 10 minutes, 15 minutes, even half an hour. We will join the class back. But till then, I want you guys to understand some of the terms that I am telling you right now. And I will give you the mic after the class, or sorry, after that activity, like half an hour later. Say at 5 p.m. we will come back, and I will ask any one student, each and every student, about any of the terms. And he or she will be, I think there are only he's in this class. I haven't seen any of the opposite gender, but all of you guys will be will have to tell me about some of the terms that I will ask you, that what is your understanding of that term. So I want you guys to note down now. I am also writing it on the Zoom chat, and you will see it here, but also note it down. So the first term that I am going to ask you is, okay, let me just write it, and then I will send you and ask you about them. Just give me some seconds, and I will type it out, and then I will send you. Yes, I think आप सबको मैसेज रिसीव हो गया होगा. अच्छा, ये कुछ टर्म्स हैं जो कि मैं चाह रहा हूँ कि आप ख़ुद इन पे सर्चिंग करें, और जितना भी हम टाइम लेते हैं उसके बाद फिर आप सब ने किसी ना किसी टर्म के ऊपर बात करनी है. नॉट ओनली दीज टर्म्स, दीज आर ओनली लिमिटेड टर्म्स. अगर आप इनको जब ढूंढेंगे, ऑनलाइन ढूंढेंगे या बुक्स में ढूंढेंगे, तो साथ ही साथ आपको कुछ और टर्म्स भी नज़र आएंगी इनके. तो इट वुड बी बेटर अगर आप कुछ और टर्म्स भी क्लास के साथ या मेरे साथ शेयर करेंगे. सर, हमने ये भी देखा इनके साथ कि ये टर्म्स भी यूज़ हो रही हैं, जो कि समझ में आती हैं आपको, और वो आप समझाने की कोशिश कर सकते हैं फॉर द होल क्लास, जिन्होंने हो सकता है कि वो चीज़ें नहीं देखी ऑब्वियसली.
So it would be a good exercise for all of us to understand some of the terms that we will be using in our coming lecture, and these are some of the terms that an e-commerce student should know. So number one is conversion rate, then sales funnel, eBay versus OLX, PPC मार्केटिंग क्या होती है, बाउंस रेट किसको कहते हैं, कार्ट अबंडनमेंट रेट क्या होता है, चर्न रेट क्या होता है, एंड पीयर टू पीयर क्या होता है. ये कुछ टर्म्स हैं जिस पे आप अभी जो है सर्चिंग भी करें. आई थिंक 4:25 हो रहे हैं. लेट्स टेक हाफ एन आवर फॉर दैट और 20 minutes, and let's join back at around 5 p.m. Stay in the class. If you ask something, you can ask something. I will answer you. I'm in the class as well. You are in the class as well. But this is just an activity that you should do in the time, and in that time, note down all of the points that you are going to talk about when we join back in the class. So do this activity. I'm still here. You can ask the questions, and I will answer those. Hopefully within time. So see you in like half an hour. अच्छा, मदन लाल कह रहे हैं कि फाउंड 2 definitions of conversion rate, one about ads and one about. अच्छा ठीक है, हम एक्चुअली एड्स की ही बात कर रहे हैं, करेंसी पे तो हम नहीं जाएंगे, बट इट्स गुड अगर आपको 2 मिली हैं तो उन दोनों को समझ लें. इट वुड बी गुड टू हैव अ डिबेट ऑन बोथ ऑफ दीज थिंग्स. सो बेशक आप दोनों के बारे में बता दीजिएगा. हाँ अच्छा, शोएब पूछ रहे हैं कि पीयर टू पीयर इन विच कम्युनिकेशन और एनीथिंग, किस सेंस में. एग्जैक्टली मैं इसी अंदाज में पूछना चाह रहा हूँ. नेटवर्क एंड कम्युनिकेशन की फ़ेज़ में, इसी सेंस में आपने बताना होगा शोएब. ऑल राइट, सो वी आर बैक. आई होप कि ये सारे टर्म्स जो मैंने आपको कही थी इनके बारे में तो आप लोगों ने सही से समझ ही लिया होगा. बट इनके अलावा भी आई एम रियली होपिंग कि इनके अलावा भी काफ़ी टर्म्स आप लोगों ने सीखी होंगी या उनके बारे में देखा होगा, इनसे मिलती जुलती या इनके साथ समझने वाली. सो अब मैं पार्टिसिपेंट्स के नाम कॉल आउट कर रहा हूँ, एंड आई वांट दैट पार्टिसिपेंट टू टेल अस अबाउट एनी ऑफ द टर्म्स दैट ही थिंक्स दैट ही कैन elaborate in a better way. And if any of the other participants think कि वो पार्टिसिपेंट कुछ गलत कह रहे हैं या उनकी अंडरस्टैंडिंग में कुछ गलती रह गई है, तो आई वांट द अदर पार्टिसिपेंट टू रेज हिज हैंड और जस्ट राइट सम ऑफ द थिंग्स. अगर वो राइट कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है, वरना रेज योर हैंड एंड आई विल गिव द माइक टू हिम एज वेल आफ्टर दैट पर्सन हैज़ फिनिश्ड टॉकिंग. सो देयर आर वेरी लेस पार्टिसिपेंट्स. इस वजह से सबको आई विल ट्राई टू give the mic and ask everyone to speak at least on one topic. So let's start. If someone want to volunteer first, तो वो volunteer कर दें. Otherwise I will just call out someone's name and I will start it myself. So if anyone wants to volunteer, so tell me please. All right. अली अकबर आई थिंक आप कहना चाह रहे हैं. अली अकबर को मैं माइक दे रहा हूँ, एंड लेट्स सी आप किस पे बात करते हैं और हाउ कैन यू टेल अस अबाउट सम ऑफ द टॉपिक्स. जी अली. अस्सलाम सर. मैं बात करना चाहूँगा पीपीसी जो मार्केटिंग है ना, उस पर बात करना चाहूँगा. बेसिकली पीपीसी जैसे कि इसके नाम से ही इसका स्टैंड ये बनता है कि पे पर क्लिक. तो इसमें ये होता है मतलब जो पब्लिशर्स होते हैं, जैसे कि मिसाल के तौर पे गूगल हो गया या और भी मतलब साइट्स हैं, उनको पे करते हैं एडवर्टाइजर्स जो एडवर्टाइज अपनी चीज को करवाना चाहते हैं. तो जैसे ही मतलब किसी वेबसाइट के एड पर क्लिक करेंगे हम, तो उस पे जो क्लिक की वजह से उसकी जो मतलब पे पर क्लिक है, तो उसके जो पैसे हैं ना, तो वो एडवर्टाइजर देगा पब्लिशर को. पब्लिशर उसमें अपना टैक्स वगैरह जो उसका होगा वो रख के बाकी जो है ना वो उसको जो वेबसाइट का ओनर होगा या उसको जो हैंडलर होगा, एडमिन होगा, उनको सेंड करेगा. तो इसमें मुझे यही चीज़ समझ में आई है सर. चलें ठीक है. पीपीसी मार्केटिंग बेसिकली जिस तरह से अली कह रहे हैं, मैं उनकी बात को ही अभी एलॉबरेट करता हूँ, और जितने मुझे उनकी बात से बात समझ आई है मैं सिर्फ वही चीज़ बता रहा हूँ, उसके अलावा कुछ ऐड नहीं करूँगा मैं.
लेकिन एक थोड़ा सा बेहतर वे में मैं आपको बताना चाहूँगा इलाबोरेट करके, अगर आपको लगता है कि यही है पीपीसी मार्केटिंग, क्योंकि बाकियों ने भी इसके बारे में पढ़ा होगा होपफुली। कोई चीज़ अगर आपने ऐड करनी है तो इसमें करें। सो अकॉर्डिंग टू अली अकबर ही सेइंग कि पीपीसी मार्केटिंग बेसिकली पीपीसी स्टैंड्स फॉर पे पर क्लिक मार्केटिंग एंड हु इज़ गोइंग टू पे टू होम, ये भी इन्होंने एलाबोरेट किया है कि पब्लिशर्स होते हैं और एडवर्टाइज़र्स होते हैं। एडवर्टाइज़र्स वो लोग होते हैं जिनकी वेबसाइट पर आप अपना ऐड लगाते हैं, और पब्लिशर्स वो होते हैं जो अपना ऐड पब्लिश करते हैं। तो अगर एडवर्टाइज़र की वेबसाइट से किसी ऐड पर क्लिक होके आप कहीं पर जाते हैं तो जिसने ऐड लगवाया था वो कुछ पैसे जो है वो एडवर्टाइज़र को देगा, यानी एडवर्टाइज़र हर क्लिक के ऊपर कुछ ना कुछ पैसे या टैक्स जो है वो चार्ज करेगा फॉर द पब्लिशर। ये बात अभी अली अकबर ने बताई है। सो इफ़ एनीवन वांट्स टू ऐड समथिंग इन इट प्लीज़ डू। अच्छा, वॉल्यूम में कोई इशू आ रहा है क्या? शुएब कह रहे हैं कि वॉल्यूम थोड़ा सा इंक्रीज़ कर दें। माइक शायद थोड़ा सा दूर हो गया होगा। लेट मी सी अगेन, हो सकता है माइक में कोई इशू हो। इज़ इट एनी बेटर? सॉरी आई फॉरगॉट टू रीस्टार्ट द रिकॉर्डिंग। सो हमारी ये जो कुछ डिस्कशंस हैं ये रिकॉर्डिंग में नहीं हो पाई होंगी, सो सॉरी अबाउट दैट जो भी ऑनलाइन रिकॉर्डिंग देख रहे होंगे। बट वी आर एक्चुअली इन द मिडल ऑफ डिस्कशन। जो टॉपिक्स मैंने दिए थे उनके ऊपर हम डिस्कशंस कर रहे हैं। शुएब ने, ज़ुबैर ने और विनोद ने कुछ बातें की हैं, अली अकबर ने स्टार्ट किया था। मेनली हमारे पास कन्वर्जन रेट के ऊपर बात हुई है, अभी तक पीपीसी के ऊपर बात हुई है, थोड़ी सी बाउंस रेट का भी बताया था। शुएब आई थिंक कंटिन्यू करेंगे। आई थिंक आपने शुएब ने बाउंस रेट के ऊपर बात की थी एंड ही अगेन हैज़ रेज्ड हिज हैंड। जी शुएब। जी सर, जैसे मैं बात कर रहा था उसके बारे में, दूसरी ना सेल्स फनल के बारे में, लेकिन सर उससे पहले जैसे विनोद ने बताया कि कन्वर्जन रेट का, तो मैं वही कह रहा था जैसे सर दराज है, अब इस पे काफी लोग आते हैं, अपने डिजायर प्रोडक्ट को सर्च करते हैं, उसकी रेटिंग वगैरह देखते हैं और फिर चले जाते हैं। उसमें से जैसे 100 में से अगर 20% लोग सिर्फ कंप्लीट करते हैं उस प्रोसेस को कि भाई ऐड कर दिया कार्ट में, फिर उसको परचेज भी किया, तो सर ये बाउंस रेट आएगा कि 20 आउट ऑफ 100 ये बाउंस रेट है हमारा, कि इन्होंने अपनी अपनी जो प्रोडक्ट को था उसको परचेज करके अपनी टास्क को कंप्लीट किया। बाकी जो 80% थे उन्होंने सिर्फ विजिट किया था। तो सर ये सही होगा सेंस में? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, इस तरह भी हो सकता है। एक्चुअली मैं इन दोनों चीज़ों को पहले क्लियर आउट कर दूं आप सबको। अब मैं अपनी तरफ से भी बता रहा हूँ कुछ चीज़ें, बाकी तो आप लोगों ने देखा ही होगा। वो ये कि कन्वर्जन रेट हो गया और बाउंस रेट हो गया, ये जितने भी रेट्स हैं ना, ये इसी तरह चर्न रेट भी आगे जाके, ये जो रेट्स हैं एक्चुअली ये डिपेंड करते हैं कि हम किस तरह की चीज़ को मेजर कर रहे हैं। जिस तरह सेल्स फनल का एक काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आई थिंक इन्हीं स्लाइड्स में हमें मिलेगा भी शायद आगे जाकर, बट नेवरदलेस हम उसको अभी से डिस्कस कर लेते हैं। सेल्स फनल एक्चुअली फ़नल क्या होती है आप सबको पता होगा कि इट इज़ काइंड ऑफ लाइक, जब आप किसी फ़नल क्या होती है, कोई डिफ़ाइन करना चाहेगा? किसी को पता है इसका उर्दू वर्ड क्या होता है? सैफ जी, सैफ क्या कह रहे हैं आप? हेलो सर। सर सेल्फ फनल के बारे में थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर दूं? चलें बेटर, मैं उसी बात पे आ रहा था कि सेल्स फनल्स पे हम स्टार्ट कर रहे थे। सर सेल्फ फनल में जो होता है ना, सबसे पहले हमें अवेयरनेस देनी होती है। हम वो अवेयरनेस वीडियोस के थ्रू हम फ्री अवेयरनेस देंगे लोगों को। फिर उसके बाद हम सेकंड स्टेप करेंगे लीड मैनेजमेंट, लीड जनरल, सॉरी सर। उसके अंदर हम फ्री वेबिनार्स और इस तरीके से हम प्रमोशन करेंगे, ठीक है, जिससे हमें ईमेल्स और उनके यूजर्स के फ़ोन नंबर्स मिल जाएंगे। थर्ड स्टेप में सर हम नर्जिंग करते हैं सर। उसके अंदर हम उनको मतलब मार्केटिंग करते हैं, उनकी मेल पे हम अपने पेड प्रमोशन वगैरह जो होते हैं उनकी इस पे वो बताते हैं कि हमारे वेबिनार्स हो रहे हैं या कोई प्रोडक्ट है उसकी मार्केटिंग वगैरह सर। इसी तरह के फिर हम पेड प्रमोशन में शुरू में जो है हम स्मॉल मतलब लो बजट मतलब प्रमोशन करते हैं। फिर लास्ट स्टेप में सर हम हाई बजट पे आते हैं, फिर मतलब जो हाई पेड प्रमोशन होती है फिर वो उनको मतलब रिकग्नाइज करते हैं। जी बिल्कुल, ऐसा ही है सैफ जो आप कह रहे हैं। आपकी डेफिनेशन आई थिंक आपने जो देखा है, आप अभी भी सामने उसको रख कर ही बोल रहे थे, तो काफ़ी कुछ टर्म्स थी ऐसी जो कि हम अभी तक नहीं देखते हैं हम, बट स्टिल जो बेसिक कंसेप्ट है सेल्स फनल का,
फ़नल एक्चुअली एक चीज़ होती है, अगर आपने आमतौर पर ऐसा होता है कि किसी आपने फॉर एग्जांपल बॉटल में कुछ भरना है या कोई इस तरह की अगर चीज़ है जिसका जिसका मुंह एक छोटा सा है, लेकिन उस कंटेनर में आप बहुत सारी चीज़ें भर सकते हैं, तो उसमें कोई चीज़ डालने के लिए आप फ़नल यूज़ करते हैं। स्पेशली जब हम कार की ऑयलिंग या बाइक की ऑयलिंग वगैरह करवाते हैं तो उसमें एक इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है जिसका ऊपर से मुंह बड़ा होता है और नीचे से छोटा होता है। तो कोई कोई चीज़ अगर हमें डालनी होती है, वी शेप की एक उसकी शेप होती है, उसको फ़नल कहते हैं। उसको आई थिंक कभी कुप्पी कहा जाता है या कभी इस तरह की चीज़ कहा जाता है उसको, वो डिफ्रेंशिएट हो सकती है। यस एग्जैक्टली अवेस, मोस्टली यूज़ फॉर ऑयल। तो उसको आप रखते हैं तो उसके ऊपर से आप चाहे बेशक जितना ज़्यादा ऑयल डाल दें, वो नीचे जो है वो उस छोटी चीज़ के अंदर जा सकता है ऑयल, जो भी आपकी बॉटल है या आपका जो भी ऑयलिंग के लिए जो भी आप यूज़ करना चाह रहे हैं। या एग्जैक्टली लैब्स वगैरह में भी यूज़ होता है। मैं थोड़ी सी ऐसी एग्जांपल ले रहा था जो कि सब समझ रहे होंगे। ऑब्वियसली केमिस्ट्री की लैब्स वगैरह में भी आपने इनको यूज़ किया होगा, बट ओके। सो दोज आर कॉल्ड फनल्स। और सेल्स फनल का काम भी यही है। सेल्स फनल क्या कहती हैं, जिस तरह से अभी सैफ बता रहे थे कि लेवल बाय लेवल हम एक तरह से छांटते रहते हैं लोगों को। यानी कि ऊपर से आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल 100 लोग आ गए, आपका बहुत बड़ा एक एरिया था जिसके अंदर आपने पूरा ऑयल जो है उसके अंदर डाल दिया, 100 लोग आ गए। लेकिन एट द बॉटम जो है वो सारे के सारे नहीं रहेंगे, वो एक बहुत ही मामूली मिकदार होगी जो कि आ रही होगी। तो यही चीज़ है कि 100 लोग, अगर आप एक बहुत बड़े मार्केटिंग कैंपेन के ऊपर 100 लोगों को रखते हैं कि भाई ये मेरे टारगेट ऑडियंस है और वॉट, और उसके बाद फिर आप देखते हैं कि यार चलें ये इन सब ने मेरा ऐड तो देखा, लेकिन फिर वेबसाइट यूज़ करने के लिए इन 100 में से सिर्फ 80 लोग आए। अब उन 80 में से भी, अब ये हो गया वेबसाइट का कन्वर्जन रेट, ठीक है, कि आपकी ऐड देखने के बाद वेबसाइट के ऊपर कितने लोग आए। दिस इज़ द कन्वर्जन रेट फॉर योर वेबसाइट विजिट। ट्रैफिक कितनी आई आपके पास, 80%। नाउ अब उन 80 पीपल में से कुछ ऐसे होंगे जो फॉर एग्जांपल अकाउंट बनाएंगे आपकी वेबसाइट के ऊपर इन ऑर्डर टू बी मोर इंटरेक्टिव फॉर यू। सो वो जो अकाउंट बनाएंगे या लॉगिन होंगे आपके ऊपर, आपकी वेबसाइट के ऊपर, सिर्फ 80 में से 50 होते हैं वो। So that's around about 60% of the people that were on your website have converted into your potential customers, not just website visitors but potential customers. And after that obviously उसके अंदर से भी कुछ लोग कम हो जाएंगे। 60% आउट ऑफ दैट 80, यानी कि 50 लोग अगर आपकी वेबसाइट के ऊपर मेंबर बन चुके हैं तो इट डजंट मीन कि वो एक्चुअली आपकी वेबसाइट से ख़रीदारी भी करेंगे। अब उसमें से भी कुछ लोग कम हो जाएंगे, तो एट द एंड ऑफ द डे देयर विल बी ओनली 20 to 30 पीपल आउट ऑफ दैट 100 जो कि एक्चुअली बाय कर रहे होंगे आपकी चीज़ को। तो ये सारी चीज़ें एक्चुअली फ़नल की तरह आपको नज़र आती हैं कि एट द मोस्ट अपर लेवल देयर विल बी मैनी एरिया, so much area to cover, but at the end of the day the funnel will only give you some of the things, not all of the area but some of the area that will give you, but that doesn't mean कि आपको सिर्फ उसी एरिया के ऊपर फोकस करना है। अगर आपका स्टार्टिंग एरिया यानी कि टॉप मोस्ट एरिया जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा प्रेशर कह लें उसको, या उतना ही ज़्यादा फिजिबिलिटी से आपको अपने कस्टमर्स मिल सकेंगे। सो दिस एक्चुअली इज़ अ सेल्स फ़नल। इसको मुख्तलिफ़ तरीके से बताया जा सकता है, जिस तरह से अभी सैफ भी कह रहे थे, उन्होंने कुछ वर्ड्स यूज़ किए कि हम पहले जो पब्लिकली जो है एडवर्टीज़मेंट करते हैं, फिर हम ट्रैफिक के ऊपर आते हैं, फिर हम उसको नच करके अपने कस्टमर्स को बनाते हैं, इस तरह की चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें भी होती हैं एंड दैट इज़ लाइक अ फ़नल। तो इस चीज़ को सेल्स फ़नल कहा जाता है। इसके अलावा आई थिंक कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अब भी कुछ इनपुट नहीं दिया है क्लास में, तो आई विल ट्राई टू आस्क देम। ओके, रेज हैंड किया है नोमान ने। नोमान से बात कर लेते हैं पहले। जी नोमान। अस्सलाम वालेकुम सर। हेलो। यस, आवाज़ आ रही है आपकी। वालेकुम अस्सलाम। आप बात करें, कंटिन्यू सर करें, आप बात कंप्लीट कर लें, मैं मैं इस एड्रेस करूँगा। कन्वर्जन रेट में मैं कुछ ऐड करना चाह रहा था कि किस तरह हम इफेक्टिव वे में अपनी वेबसाइट की कन्वर्जन रेट जो है इंक्रीज़ कर सकते हैं। या अगर हम अपनी वेबसाइट में जो है जो भी यूज़र जो है यूज़र के लिए अगर हम रिव्यूज़ रख दें और जो है लाइव चैट जो है अपनी वेबसाइट में जो है हम ऐड करवा दें, तो इससे जो है हमारी जो है कन्वर्जन रेट जो है इंक्रीज़ हो सकती है। वेबसाइट में हम पॉपअप साइट रख दें, एक फ्रेंडली यूज़र इंटरफेस रख दें यूज़र के लिए। तो इन सब चीज़ों से जो है हम अपनी कन्वर्जन रेट जो है इंक्रीज़ कर सकते हैं।
दैट्स अ गुड पॉइंट। ओके, कन्वर्जन रेट हमने सिर्फ ये देखा था कि कन्वर्जन रेट होता क्या है। नोमान एक्चुअली ये ऐड कर रहे हैं कि कन्वर्जन रेट को हम बढ़ा किस तरह से सकते हैं। और सर एक क्वेश्चन था कि डिक्रीज किस वजह से होती है कन्वर्जन रेट। योर क्वेश्चन इसके कन्वर्जन रेट डिक्रीज क्यों हो जाती है। अच्छा, इसके ऊपर भी बात होनी चाहिए वैसे। कन्वर्जन रेट, पहली बात तो ये कि आपने बता दिया कि इंक्रीज़ किस तरह से की जा सकती है, हम उसके ऊपर बात कर सकते हैं। यस सर। अगर आपने कुछ और ऐड नहीं करना है तो आई विल म्यूट यू नाउ, इज़ दैट ओके? यस सर, ओके डन। सो जिस तरह से उन्होंने कहा कि भाई इंक्रीज़ करने के बहुत सारे तरीके हैं कि आप यूज़र्स को जो है उनको चैट रूम फराहम करें और उनको मुख्तलिफ़ तरह के कंटेंट दें, इस तरह की चीज़ें। इसको बढ़ाया किस तरह से जाता है, इसके कम होने की क्या जो है वो वजूहात होती हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह जो है जो कि एक बड़ी जानी मानी वजह है, हमने मार्केटिंग का कोर्स ऐसा सच नहीं पढ़ा, बट फिर भी जो एक बड़ी वजह है इसकी वो है लैक ऑफ इंगेजमेंट। यूज़र्स को इंगेज नहीं कर पा रहे होते लोग, और इंगेज करने का सबसे अच्छा तरीका है टू मार्केट योर प्रोडक्ट यूजिंग कंटेंट। सो इट इज़ अ वेरी वेरी वास्ट टॉपिक और इसके ऊपर काफ़ी काम भी हो रहा है। बट सबसे कम आपकी कन्वर्जन रेट तब आती है जब आप यूज़र को इंगेज नहीं कर पा रहे होते। आपकी वेबसाइट तो बनी हुई है लेकिन उसके ऊपर कंटेंट अच्छा नहीं है। कंटेंट डजंट मीन कि आप जो चीज़ बेच रहे हैं सिर्फ उसके मुतालिक इन्फॉर्मेशन। कंटेंट मीन्स कि आपका जो कस्टमर है, पोटेंशियल कस्टमर, उसको किस चीज़ में इंटरेस्ट है, नॉट अबाउट योर प्रोडक्ट बट उसका इंटरेस्ट किस चीज़ में है। आप उस चीज़ के ऊपर जाओ और उसको इंगेज करो उसके साथ, वो आपका कस्टमर बनने के ज़्यादा अहल हो सकता है, वो ज़्यादा कन्वर्ट हो सकता है आपके एक एक्चुअल कस्टमर में। इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल्स जो आपको आजकल नज़र आ रही हैं वो सॉर्ट ऑफ लाइक नाउ यू आर सीइंग के ईच हर तरह के ब्रांड्स जो हैं वो अब उस तरह की चीज़ों में इन्वेस्ट कर रहे हैं जो कि उनके ब्रांड से रिलेटेड नहीं है। जिस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल ईजी पैसा की एग्ज़ाम्पल लेते हैं नाउ ईजी पैसा, या चलें HBL की एग्जांपल लेते हैं, एक बड़ी अच्छी एग्जांपल है। HBL इज़ अ बैंक, ठीक है। उनके कस्टमर्स तो बैंकिंग कर रहे हैं ना, तो उन्हें अपनी बैंकिंग के हिसाब से ही उनको करना चाहिए, क्या कहते हैं, एडवर्टीज़मेंट वगैरह। बट यू आर सीइंग के HBL इज़ द प्राइम स्पॉन्सर और द क्रिएटर ऑफ द पाकिस्तान सुपर लीग, एंड यू नो कि HBL इज़ द प्राइम स्पॉन्सर ऑफ दैट। अब वो जो कंटेंट बना रहा है, एक्चुअली HBL के कस्टमर्स ये नहीं चाह रहे कि HBL ये काम करे, बट दैट इज़ अ वेरी गुड टेक्निक टू इंगेज यूर कस्टमर्स। सिमिलरली यू आर सीइंग ऑल ऑफ दीज म्यूज़िक शोज़ कमिंग आउट, लाइक कोक स्टूडियो इज़ देयर और नेस्कैफ़े, और आई थिंक अभी कोई नया भी आया है, कोई वीलो वगैरह का। तो यू आर सीइंग दिस बिकॉज दैट इज़ नॉट बिकॉज कि उनका प्रोडक्ट ये है, दे आर यूजिंग दिस थिंग टू एक्नॉलेज द इंटरेस्ट ऑफ देयर कस्टमर्स। वो उस कंटेंट के थ्रू कस्टमर को इंगेज कर रहे हैं और उस इंगेजमेंट की वजह से वो लोग भी उनकी चीज़ें ख़रीदते हैं या उनको उनके बारे में पता लगता है, उनका कन्वर्जन रेट बढ़ता है, जिसकी जो कि उनके प्रोडक्ट के एक्चुअल कस्टमर्स नहीं हैं। तो इन ऑर्डर टू इंक्रीज़, जब डिक्रीज़ होती है आपकी जो कन्वर्जन रेट है, उसका एक सोल पर्पज़ यही होता है, उसका एक सोल वजह यही होती है कि आप यूज़र को इंगेज नहीं कर पा रहे होते। और इंगेजमेंट अक्सर प्रोडक्ट्स ये समझ रहे होते हैं, ओल्ड मार्केटिंग टेक्निक्स में ये समझते थे कि आपके प्रोडक्ट की ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो, बट नो, इन टुडेज़ मार्केटिंग इट्स लाइक कि आपके प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन तो हो ही, लेकिन साथ ही साथ टू बेटर इंगेज योर कस्टमर इन ऑन योर वेबसाइट और एनी अदर प्लेटफॉर्म जहाँ पर भी आप हैं, इज़ टू पुट द थिंग्स दैट योर कस्टमर इज़ इंटरेस्टेड इन, डजेंट मैटर इफ़ दैट थिंग इज़ रिलेटेड टू योर प्रोडक्ट और नॉट. So in my opinion, and this is a very good, this is a very understood thing, that content engages people. So when you want to engage people on your website or any of your web presence, it's better to use content. शोएब कुछ और ऐड करना चाह रहे हैं जी? शोएब जी सर, जैसे मैं बताना चाह रहा था कि शॉपिंग कार्ट अबंडमेंट रेट जो होता है उसके बारे में ना, तो सर जैसे हम दराज पे कोई शॉपिंग वगैरह करते हैं तो हमें कुछ आइटम्स पसंद आ जाते हैं। हेलो सर, आवाज़ आ रही? आपकी आवाज़ आ रही है, आप बोलते रहें फिर, क्योंकि मैं बीच में नहीं बोलना चाह रहा वरना फिर डिस्कशन हो जाती है। बंदा कंप्लीट कर ले तो फिर दूसरा बोले। जी सर, तो सर जैसे हमें कुछ आइटम्स पसंद आते हैं तो हम उसको कार्ट में ऐड करते जाते हैं कि ये एक ही टाइम पे हम परचेज कर लेंगे। अब जब
चेकआउट का टाइम आता है तो उसमें ये होता है कि जैसे 100% लोग हैं उन्होंने आइटम्स को ऐड किया हुआ है, तो उसमें से 80% या 70% ऐसा होता है कि हम कार्ड में से रिमूव कर देते हैं एंड में आकर, सिर्फ कुछ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स को हम बाय करते हैं, बाकी सबको रिमूव कर देते हैं। सर ये अबंडेंट रेट यही होता है कि हमने जितने परसेंट लोगों ने बाय किया है उन्हें, और जिन्होंने वापस डिस्कार्ड कर दिया है उनका रेशो, सर आई एम नॉट रॉन्ग। एग्जैक्टली आपकी डेफिनेशन तकरीबन सही है। और सर जी जी और सर ये एक और था वो सेल्स फनल का ना, तो उसमें एक एग्जांपल बहुत अच्छी मिली थी, जैसे एक लाइट, हाँ खुल, एक एग्जांपल सर बहुत अच्छी मिली थी, जैसे एक आपका आउटलेट बना हुआ है, तो उसके बाहर से काफी लोग गुजर रहे हैं, अब उसमें से जैसे 10% लोग अंदर आए हैं शॉप में ना, तो अब उसके बाद उसमें से 3% लोगों ने आपके कैबिनेट्स में आपके आउटफिट देखे कि जैसे एडिडास वालों के, तो उसमें देखा भाई ये मुझे आइटम पसंद आया है। अब उन 3% में से भी कुछ ने उनको चेक किया और वापस रख दिया, उसमें से सिर्फ 2% लोगों ने चेकआउट तक, काउंटर तक गए, उन्होंने पेमेंट की और फिर वहां से वो बाहर निकले। सर ये पूरा रेट उसका सेल्स फनल का। आप बिकॉज आपने अभी जो सारी सेल्स फनल का बताया है ये तकरीबन वही चीज़ है जो कि मैंने भी बताई। मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो ई कॉमर्स से रिलेटेड था, आपने उस चीज़ को एज अ फिज़िकल शो करने की कोशिश की है। सो अ गुड एग्जांपल अगेन कि लोग गुजर रहे हैं, वो आपके स्टोर को देख रहे हैं बट दे आर नॉट कमिंग, बट उनमें से भी कुछ लोग अगर आते हैं तो वो बहुत कम है जो कि एक्चुअली आपके प्रोडक्ट को देखते हैं, और उन देखने वालों में से भी बहुत कम है ऐसे जो कि आपके एक्चुअली प्रोडक्ट को ख़रीदते हैं। बट दैट डजंट मीन कि आपके प्रोडक्ट, आपके स्टोर को नज़र भी उनको, उन्हीं लोगों को आना चाहिए जो लोग आपके एक्चुअल कस्टमर्स हैं, राइट। सो इट्स अ वेरी गुड एग्जांपल टू अंडरस्टैंड दैट कंसेप्ट एज वेल, कि द मोर पीपल दैट नो योर स्टोर इज़ देयर द मोर योर सेल्स विल बी, राइट। देयर इज़ अ कमेंट, मैं ज़रा उसको एड्रेस कर लूँ फिर बाकी टॉपिक्स के ऊपर आते हैं। या उसी को एक्नॉलेज कर रहे थे शुएब। अच्छा, सेल्स फनल की बात हो गई, पीपीसी मार्केटिंग से स्टार्ट किया था अली अकबर ने, उसके ऊपर भी बात हो गई है। अच्छा, कार्ट अबंडनमेंट का भी सही बताया अभी, आई थिंक शुएब बता रहे थे जिस तरह कि कार्ट में आती हैं चीज़ें लेकिन लोग जब बाय करते हैं चीज़ तो उनमें से बहुत कम चीज़ें होती हैं जिनको वो एक्चुअली पे करते हैं और बाय करते हैं। इसका एक्चुअली आजकल एक नई चीज़ भी है कार्ट अबंडन रेट के साथ साथ ही सेविंग, जब अकाउंट आप बना लेते हैं ना तो उसके बाद एक सेविंग का ऑप्शन भी है, सेव फॉर लेटर का ऑप्शन आजकल वेबसाइट्स इंट्रोड्यूस करवा रही हैं रादर देन कार्ट, बिकॉज दे फाउंड आउट कि पीपल वर यूजिंग द कार्ट थिंग एज अ सेव बटन, कि भाई ये ख़रीदना तो नहीं है लेकिन ये रखा रहे कभी हम ख़रीद लेंगे, फिर जब एक्चुअली उनको चेकआउट करना होता था तो वो कार्ट में से सारी चीज़ें निकाल देते थे, तो इससे इनके नंबर्स पर काफ़ी असर पड़ रहा था। तो इस वजह से फिर वेबसाइट्स ने सेव के बटन को, कि भाई सेव फॉर लेटर, कार्ट में ऐड ना हो कि आपने ख़रीदना है बट सेव कर लिया जाए आपके पास कि आप इस प्रोडक्ट को बाद में भी देख सकते हैं। तो इस चीज़ से हुआ क्या कि कार्ट अबंडन रेट के फिगर्स जो हैं वो काफ़ी अच्छे सामने आने लग गए, क्योंकि आप सिर्फ कार्ट में वही चीज़ें जा रही थी जो कि लोग वाकई परचेज़ करने के ख्वाहिशमंद थे। वो फिर बात की बात है कि वो उसमें से क्या क्या ख़रीदते हैं या क्या क्या नहीं ख़रीदते, बट इट वॉज नॉट वर्किंग एज जस्ट अ सेव बटन, ठीक है। दैट वाज द कार्ट अबंडनमेंट रेट। ओके, देन देयर इज़ चर्न रेट। चर्न रेट मेरा खुद के जहन से भी निकल गया एक्चुअली क्या था ये। आप लोगों को भी किसी को नहीं मिला कि चर्न रेट क्या था? मेरे जहन से निकल गई ये चीज़। एनीवे, बिल्कुल क्लिक नहीं कर रही अभी। सो पीयर टू पीयर के ऊपर आते हैं, एंड आई थिंक किसी स्टूडेंट ने भी बताया था ये पीयर टू पीयर इज़ एक्चुअली द नेटवर्क जिसके ऊपर जो है वो इंडिविजुअल से इंडिविजुअल के ऊपर हो रही होती है। आई थिंक इसके ऊपर भी बात हो गई है। ईबे वर्सेस OLX के ऊपर किसी ने बात नहीं की। व्हाट डू यू थिंक इज़ द डिफरेंस? ईबे वर्सेस OLX। ओके, शुएब भी बात करना चाह रहे हैं। जी शुएब। सर जनरेट का मैं कुछ बोल रहा था, जैसे जनरेट के हवाले से ये आ रहा था कि एक प्रोडक्ट है उसकी सब्सक्रिप्शन आपने ली हुई है, तो अब जैसे 3 महीने की आपने पैकेज ले लिया है, अब आपको उसकी सर्विसेज से मतलब आप सेटिस्फाइड नहीं है, तो आप बजाय इसके कि आप दोबारा कंटिन्यू करें, आप उसको सर्विस को ब्रेक कर देंगे और दोबारा सब्सक्रिप्शन लूज कर देंगे। तो सर ये मतलब जनरेट आ रहा था कि एग्जैक्टली सही जो कह रहे नए हैं। कस्टमर्स आ रहे हैं उनसे और जो पुरानी सब्सक्रिप्शन हमारी जा रही है उन दोनों को कंपेरिजन। एग्जैक्टली सही कह रहे हैं। इट इज़ बेसिकली, अगर मैं बाकी स्टूडेंट्स को एक दूसरे एंगल से समझाऊँ, इट इज़ बेसिकली द अपोजिट ऑफ कन्वर्जन रेट। it is again a conversion rate, but it is the opposite of that. Conversion rate ends when the people buy your product. आपने कहा देखा कि ऐड कितनों ने देखा, फिर उनमें से कितने लोग वेबसाइट पर आए, ये सारी आप कन्वर्जन रेट देखते जा रहे हैं। उनमें से बहुत कम इस तरह के हैं जिन्होंने आपके प्रोडक्ट को एक्चुअली ख़रीदा, उनका कन्वर्जन रेट बहुत कम है।
चर्न रेट एक्चुअली ये है कि जब एक बंदा या कोई एक सेट ऑफ पीपल आपके कस्टमर्स हैं, उसके बाद वो आपकी सर्विसेज को छोड़ रहे हैं, दैट इज़ योर चर्न रेट। फॉर एग्जांपल 20 लोगों ने आपके प्रोडक्ट को ख़रीदा है इस महीने में या इस दिन में, और आप देखते हैं कि अगले महीने वो 20 नहीं आए बल्कि सिर्फ 10 लोग रह गए, उनमें से 10 लोग चले गए, उन 10 लोगों ने दोबारा ख़रीदारी नहीं की आपकी शॉप से, आपके स्टोर से। सो दैट मीन्स कि आपका 50% चर्न रेट हो गया। चर्न रेट कम से कम हो तो ज़्यादा अच्छा है, लाइक आई सेड कि इट इज़ एन अपोजिट थिंग। तो कम से कम चर्न रेट हो। 0% चर्न रेट का मतलब यही है कि आपके जितने कस्टमर्स पहले थे उतने ही अब हैं। और चर्न रेट अगर नेगेटिव में चला जाता है तो दैट इज़ अ वेरी गुड साइन कि आपका चर्न रेट, यानी कि जितने आपके 100 लोग पहले कस्टमर थे तो अब बजाय इसके कि 100 से कम हो बल्कि 100 से ज़्यादा होने चाहिए रादर देन कि 100 से कम हो। सो चर्न रेट बेसिकली इसको कहते हैं। eBay वर्सेस OLX पे आते हैं, किसी ने इस पे एड्रेस नहीं किया। OLX का तो खैर अंदाज़ा होगा ही आप सबको, OLX क्या काम करता है। आई डोंट थिंक कि eBay को पाकिस्तान में ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। आई एम नॉट श्योर कि उसकी सर्विसेज पाकिस्तान में फ़राहम हो भी रही हैं या नहीं। आई हैवंट यूज्ड दैट पर्सनली, बट eBay का एक मॉडल जो है वो डिफरेंट है दैन OLX। अच्छा, पहली बात तो ये कि हम इनको जब कंपेयर कर रहे हैं तो इसका मतलब यही है कि दोनों चीज़ें सेम ही हैं, थोड़ा फ़र्क के साथ, ठीक है। कभी भी हम किसी एक दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं तो वी आर एक्चुअली एक्नॉलेजिंग कि इन दोनों में कोई ना कोई सिमिलैरिटीज़ हैं, हम सिर्फ डिफरेंस देखना चाह रहे हैं। तो OLX और eBay प्रीटी मच द सेम नेटवर्क विच इज़ पीयर टू पीयर नेटवर्क होता है कि आप एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल को चीज़ें बेचता है, ठीक है। देयर इज़ नो बिजनेस और थर्ड पार्टी इन्वॉल्व इन दैट अदर देन कलेक्टिंग द टैक्सेस और प्रोवाइडिंग सर्विसेज, दैट्स इट। eBay के अंदर भी यही है। eBay का असल में प्राइसिंग मॉडल मुख्तलिफ है। eBay वर्क्स ऑन द बिडिंग टेक्निक। eBay के अंदर ये नहीं होता कि OLX की तरह आप बता दें कि मैं ये चीज़ इतने में बेच रहा हूँ। eBay वर्क्स ऑन अ बिडिंग टेक्निक। जिस तरह से आपके फ्रीलांसिंग की जो प्राइसिंग होती हैं वही प्राइसिंग स्ट्रेटजी eBay भी यूज़ करता है। यानी कि eBay ये कहता है कि आपने अगर कोई चीज़ बेचनी है तो आप सिर्फ उसको लगा दें, उसको जो ख़रीदने वाले होंगे प्राइस वो उसकी बताएंगे कि कितनी होनी चाहिए। ऑब्वियसली यू विल असाइन, जिस तरह से बिडिंग में होता है, नीलामी में जिस तरह से होता है कि आप एक मिनिमम प्राइस उसकी बता देते हैं कि इतने से स्टार्ट करनी है। फिर द मोर पीपल कम टू यू, द मोर इंटरेस्टेड पीपल कम टू यू, द हायर द रेट विल बी। तो जितने ज़्यादा लोग आएंगे उतना ज़्यादा आप लोगों के पास आपके पास जो है वो रेट हो सकता है आपकी चीज़ का। तो eBay और OLX प्रीटी मच सेम चीज़ के ऊपर काम कर रहे होते हैं, बट eBay की प्राइसिंग स्ट्रेटजी इज़ अ लिटिल डिफरेंट दैन OLX। OLX इज़ काइंड ऑफ लाइक अ फिक्स्ड प्राइस स्ट्रेटजी, बट यानी कि OLX के ऊपर जो सेलर होता है प्राइस को वो सेट करता है, अदर पीपल कैन ओनली निगोशिएट। जबकि eBay के ऊपर जो बायर्स होते हैं वो प्राइस को सेट करते हैं, एक्सेप्ट द मिनिमम प्राइस सेट कर दी जाएगी सेलर की तरफ से, और फिर उसके ऊपर जितनी ज़्यादा बिडिंग होगी उसकी बिडिंग क्लोजिंग डेट भी होती है ऑब्वियसली, कि तब तक अगर किसी ने बिड नहीं किया तो वो मिनिमम रेट पे आपको बेचना पड़ेगी अगर कोई यूज़र आता है तो। अदरवाइज़ अगर उस पर बिडिंग हो रही है तो जो फाइनल बिडर होगा, जो हाईएस्ट बिडर होगा बिफोर द एंड ऑफ बिडिंग, टाइम एंड होने से पहले, उसको आपको वो चीज़ दे देंगे। सो दिस इज़ हाउ eBay वर्क्स। OLX पे इस तरह नहीं होता है ऑब्वियसली। OLX के ऊपर जो सेलर होता है वही प्राइस को सेट करता है, एंड देयर इज़ नो टाइम, फिनिश टाइम कि भाई इससे पहले आपने बेचनी है और इस तक आपको इस कीमत पे बेचनी पड़ेगी। सो दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दीज टू। वी स्टिल हैव अ लिटिल टाइम बिफोर वी एंड द क्लास। 10-15 मिनट के बाद क्लास ख़त्म करते हैं, बट लेट्स अंडरस्टैंड सम ऑफ द थिंग्स ऑन जो हमने टॉपिक छोड़ा था। यानी कि आपको आई थिंक स्क्रीन कौन सी शेयर हुई है अभी? आई डोंट थिंक आई कैन चेक इट, कैन यू टेल मी? वही चीज़ें हैं वाई अ चेंज इन रैंकिंग इनपुट्स पे जब हम बात कर रहे थे, वही आपको नज़र आ रहा है? राइट, तो वहीं से बात कंटिन्यू करते हैं। चलें, यहाँ तक तो हमारी बात हो गई थी। ओके, सो दिस इज़ एक्चुअली द न्यू वेंचर ऑफ अ वेबसाइट। इन ओल्ड मार्केटिंग, इन द ट्रेडिशनल मार्केटिंग कह लेते हैं, ओल्ड तो नहीं, देयर वाज ब्रांड एंड प्रोडक्ट, देन आपकी वैल्यू प्रोपोजिशन आती थी, आपके ऑडियंस इन्फ्लुएंसर्स आते थे, कंटेंट और यूज़र एक्सपीरियंस आता था, और उसके बाद एंड में आप फिर आए हैं और अब आप कह रहे हैं कि ये सारी चीज़ें तो होनी चाहिए, लेकिन अब आपकी वेबसाइट के ऊपर SEO भी होना चाहिए, विच स्टैंड्स फॉर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन।
एंड सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन को अगर मैं सिंपली आपके सामने डिफाइन करना चाहूँ फॉर ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स जिनको इन्फॉर्मेशन है भी, जिनको नहीं भी है इसके बारे में, वो ये कि SEO इज़ अ टेक्निक, इज़ अ सेट ऑफ टेक्निक्स। बहुत सारी टेक्निक्स हैं जिनको मिला के हम कहते हैं कि अच्छा दीज आर द टेक्निक्स दैट आर नोन एज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स। ये टेक्निक्स बेसिकली इनका काम क्या होता है, ऐसी टेक्निक्स जो कि आपकी वेबसाइट को सर्च वर्दी बनाए। आपकी वेबसाइट से रिलेटेड जब कीवर्ड सर्च किए जाएं गूगल के ऊपर या किसी और सर्च इंजन के ऊपर जब सर्च किए जाएं, तो व्हाट आर द चांसेस कि आपकी वेबसाइट टॉप पर आएगी, दैट इज़ डिसाइडेड बाय द पेज रैंक। आपका जो पेज रैंक है, फॉर एग्जांपल देयर आर ओनली 10 पेजेस। जब मैं सर्च करता हूँ फॉर एग्जांपल शॉपिंग, अगर मैं सर्च करता हूँ शॉपिंग तो सिर्फ 10 पेजेस आ सकते हैं। अब वो सिर्फ एक एग्जांपल के तौर पे मैं दे रहा हूँ। ऑब्वियसली वी नो कि देयर आर मिलियंस ऑफ पेजेस दैट विल कम अप व्हेन यू सर्च फॉर शॉपिंग। सो वो जो शॉपिंग आपने सर्च किया, लेट्स सपोज 10 पेजेस आ सकते हैं। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ योर वेबसाइट अमंग दोज? आपकी वेबसाइट है तो सही, शॉपिंग जब सर्च की जा रही है तो वो आपकी वेबसाइट है वहाँ पर। ओके सॉरी, आवाज़ चली गई थी, म्यूट के बटन पे क्लिक हो गया था। सो व्हाट आई एम सेइंग इज़ कि आपकी वेबसाइट जो है वो जो 10 चीज़ें आपके सामने आ रही हैं, वो जो 10 रिज़ल्ट्स जब आप शॉपिंग सर्च कर रहे हैं तो आ रहे हैं, तो वो जो 10 रिज़ल्ट्स आ रहे हैं उनमें से आपकी वेबसाइट का रैंक क्या है, इसको बढ़ाना और इसको कम करना, इसको बढ़ाने के लिए जो टेक्निक्स इस्तेमाल की जाती हैं उनको कहा जाता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग द रैंक ऑफ योर वेबसाइट बेटर विद रेस्पेक्ट टू सम कीवर्ड्स। सो जो आपके वेबसाइट के कीवर्ड्स हैं उनके मुताबिक आपकी वेबसाइट टॉप पर आए या कौन से रैंक पर आ रही है, दैट विल डिसाइड फ्रॉम SEO ये डिसाइड करेगा कि आपकी वेबसाइट किस रैंक पर आनी चाहिए। सो दीज आर सम ऑफ द टेक्निक्स। मूविंग ऑन, एक सबसे बड़ा जो इशू आ गया है अब SERPs के लिए, वेबसाइट्स के लिए, बड़ा गौर से सुनिएगा, बड़ी एक इंटरेस्टिंग फिनोमेना है जो कि अब आ गया है आफ्टर 2011-12 के बाद। जो सर्च इंजन ने, स्पेशली गूगल ने जो चीज़ चेंज की वो ये हुआ है कि इससे पहले तो अगर कोई वर्ड सर्च करता था कीवर्ड, देयर वर हायर चांसेस कि अगर मेरी वेबसाइट फर्स्ट पेज पर आ रही है तो उसके ऊपर लोग क्लिक कर लेंगे। बट नाउअडेज आपकी वेबसाइट अगर टॉप पर भी आ रही है ना, टॉप का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आई एम टेलिंग अबाउट द फ्रंट पेज, आई एम टॉकिंग अबाउट कि आपकी वेबसाइट फर्स्ट या सेकंड नंबर पर भी अगर आ रही है, एक ही पेज के ऊपर, फर्स्ट पेज के ऊपर फर्स्ट नंबर पे जो वेबसाइट आ रही है, देयर आर लेसर चांसेस नाउ ऑफ दैट बीइंग क्लिक्ड ऑन। उसके ऊपर क्लिक नहीं किया जा रहा, बहुत कम चांसेस हैं। क्यों? बिकॉज सर्च इंजन रिजल्ट पेज के अब फीचर्स आ गए हैं और अब वो फीचर्स तकरीबन सारी चीज़ें ही फराहम कर रहे हैं आपको सिर्फ SERP के ऊपर ही। जिस तरह से आपने सर्च किया, फॉर एग्जांपल आपको जो स्लाइड नज़र आ रही है इसके ऊपर लिखा हुआ है 2017 ऑस्कर्स आपने सर्च किया। अभी आपने 2017 ऑस्कर्स सर्च किया है, यू विल नॉट गो टू द वेबसाइट ऑफ द अकेडमी, you will just see all of the results and all of the things and news on the SERP itself। जिस तरह से आपको राइट कॉर्नर में नज़र आ रहा है कि भाई नॉमिनीज़ कौन कौन थे और उसके बाद उसमें से विनर कौन कौन थे, आप उसको स्विच भी कर रहे हैं, आप SERP के ऊपर ही हैं, लेकिन ये फीचर इंट्रोड्यूस करवा दिया SERP ने। इसका मतलब है कि जो टॉप मोस्ट रिजल्ट्स आपके पास आ रहे हैं, देयर इज़ लेसर चांस कि अब उस वेबसाइट को भी ट्रैफिक मिले। और ये सिर्फ आम तौर पर जानने वाली चीज़ों से नहीं है, बल्कि ऐसी चीज़ों से भी है जिसके ऊपर क्वेश्चंस हो रहे होते हैं, स्टैक ओवरफ्लो के क्वेश्चंस। आप स्टैक ओवरफ्लो पर नहीं जाते, अक्सर आपको क्वेश्चन के आंसर्स नज़र आ रहे होते हैं SERP के ऊपर ही, यानी कि उसके ऊपर भी अब क्लिक नहीं हो रहा है। इट इज़ अ वेरी बिग वेबसाइट जिसके ऊपर बहुत अच्छा कंटेंट है, लेकिन लोग अब उसको भी विज़िट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उसके सारे रिजल्ट्स गूगल SERP के ऊपर दिखा रहा है। ठीक है, सो इफ़ यू लुक एट दिस ओवरव्यू कि भाई व्हाट टू डू इन सैन डिएगो, कुछ हमने सर्च किया, सो 4.3K to 6.5K रिजल्ट्स इन वॉल्यूम आर देयर, बट द अपॉर्चुनिटी इज़ ओनली 38 पीपल, यानी कि 38 पीपल आर ओनली गोइंग टू क्लिक ऑन योर वेबसाइट एक्चुअली
कौन से एक्चुअली आपके सेंचुरी को टूर कर रहे हैं, कौन से एक्चुअली आपके सेंचुरी के ऊपर आ रहे हैं, वेबसाइट के ऊपर आ रहे हैं. दिस इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट थिंग नाउ डेज़. सो ये कुछ स्लाइड्स आपको इसी चीज़ के ऊपर बता रही हैं कि लेट्स सपोज आप कहते हैं बेस्ट कॉमेडीज़ ऑन नेटफ्लिक्स, आपको सारी मूवीज़ दिखाई जा रही हैं कि भाई कौन कौन सी चीज़ें एक्चुअली होस्ट की जा रही हैं ऐसे सर्टन वेबसाइट के ऊपर. व्हाट इज़ द रेट ऑफ समथिंग. SERP खुद ही बता रहा है कि भाई फला वेबसाइट इतने में ये चीज़ बेच रही है विदाउट यू क्लिकिंग ऑन द वेबसाइट एंड गोइंग ऑन द वेबसाइट एंड engaging with the content of that website. Similarly, all of the recipes, all of the things, Google and every search engine is mining so much into the website and the exclusive web page that it is telling you each and everything that you want to know and on the SERP rather than going to when you are going to click here. Take all of the questions, all of the codes, all of the links. Even the links that are given in your website, if they are switching you from that website to another website, there is no need to go to the first website as well. Google is offering the what do you call it, जो कि हमने last lecture में देखा था, the hyperlink, the anchor text of a website is giving on the SERP, and you are not going to the primary website, you are only landing on the secondary website right about now. So there are 16 features that every SEO, now here O is not for optimization, it is for optimizer. Every SEO सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़र जिसको जो बंदा इन फीचर्स पे काम कर रहा है उसको 16 फीचर्स के ऊपर अब काम करने हैं एट लीस्ट. ये वो 16 फीचर्स हैं जो कि एक्चुअली दिखाए जा रहे हैं आपकी SERP के ऊपर अब. तो अगर आपके वेबसाइट के ऊपर ये 16 फीचर्स हैं तो इसका मतलब यही होगा कि आपकी वेबसाइट अब ज़्यादा अहल है फ्रंट पेज पे आने के. नॉट कि आपके फ्रंट पेज पे आने के बाद क्लिक भी होगा, बट एटलीस्ट यू विल बी ऑन द टॉप. सो इन 16 फीचर्स को हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर. इट वुड बी गुड अगर आप इन सब चीज़ों को देख कर आ जाएँ नेक्स्ट क्लास के अंदर, तो ऑब्वियसली डिस्कशन विल बी वेरी गुड. एंड अदरवाइज आई विल बी जस्ट टेलिंग यू एंड यू विल बी अंडरस्टैंडिंग दैट. बट आई डोंट थिंक कि ये ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर सिर्फ मैं ही बताता रहूँ. आप इसको समझ लेंगे अच्छी तरह. इट वुड बी वेरी बेटर फॉर यू कि हम इस पर आके कुछ डिस्कशंस करें नेक्स्ट क्लास के अंदर रादर देन जस्ट वन टू मैनी कम्युनिकेशन. सो दैट्स अबाउट इट फ्रॉम टुडेज़ क्लास. आई वॉन्ट द CR टू सेंड मी दी अटेंडेंस प्लीज़. मोहम्मद नोमान है आई थिंक CR. ईमेल मुझे कर दें स्नैपशॉट लेके, और अगर किसी का कोई कमेंट कोई क्यूरी वगैरह है तो मुझसे पूछ लें. एंड after a minute I will end this class. I am just waiting for anyone to write his comment or any question. All right, so that's about it from today's class. Thank you very much. See you next week inshallah.